یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4، وسعت۔ ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی اسم کے بارے میں مکمل معلومات لینی ہوں تو اس اسم کی ہمیں 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ جنس میں وہ اسم کیا ہے یہ ہم پڑھ چکے، پھر عدد میں وہ اسم کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع، تو یہ ہم پڑھ چکے۔ اور اب وسعت میں وہ اسم کیا ہے اسے ہم نے سمجھنا ہے اور اسے اس سبق میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ وسعت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ وہ اسم نکیرہ ہے یا معرفہ۔ دراصل وسعت گنجائش کو کہتے ہیں۔ بعض اسموں کی معنوی گنجائش زیادہ ہوتی ہے اور بعض اسموں کی معنوی گنجائش کم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نکرہ یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی معنوی گنجائش بہت زیادہ ہو، معرفہ جس کی معنوی گنجائش کم ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں رجل، مرد، تو یہ دنیا کے جتنے مرد ہیں سب کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے پاکستان سے، چاہے ہندوستان سے، چاہے وہ عربی بولتا ہو، چاہے وہ انگلش بولتا ہو، چاہے وہ کالے رنگ کا ہو یا سفید رنگ کا، سب کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، رجل، مرد۔ لیکن اگر میں کہوں محمود، تو یہ ہر مرد کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے 10 مردوں پر بولا جائے، 20 پہ بولا جائے، ہو سکتا ہے کہ 100 پر بولا جائے، لیکن ہر مرد کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو اس طرح معلوم ہوا وسعت کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، نکرہ جس کی وسعت یعنی گنجائش معنوی بہت زیادہ ہو، اور معرفہ جس کی معنوی گنجائش بہت کم ہو۔ یہی بات ایک اور انداز میں بھی سمجھ لیجئے۔ ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام نکرہ ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، میں نے عرض کیا ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام نکرہ ہوتا ہے۔ مثلا میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ کرسی ہے، آپ کے گھر میں اس طرح بیٹھنے کی جو ہے وہ بھی کرسی ہے، اور جو اسکول اور کالجز میں اس طرح بیٹھنے کی جو اشیاء ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کرسیاں۔ تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں بیٹھنے کے لیے ان سب کا مشترک نام کرسی ہے۔ تو ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام نکرہ ہوتا ہے۔ عموماً نکرہ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں اور معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں۔ عام طالب علم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پنکھا عام ہے یا خاص ہے، یہ دیوار عام ہے یا خاص ہے، اسے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام نکرہ ہوتا ہے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس کی معنوی گنجائش زیادہ ہو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں طریقوں سے ہمیں واضح ہو گیا کہ نکرہ یعنی جس کی معنوی گنجائش زیادہ ہو یا ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام ہو۔ نکرہ کا عموماً ترجمہ
कोई, कुछ, चंद और कभी एक किया जाता है। मसलन रजुलन एक आदमी, माउन कुछ पानी, या इसी तरह कभी एक, कभी कुछ और कभी चंद किया जाता है। मारिफा ख़ास इसम को कहते हैं। इसम मारिफा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं और इसम नकीरा को कॉमन नाउन कहा जाता है। तो इसम मारिफा की 5 अक़साम हैं। उन सब में पहली किस्म इसम आलम है। इसम आलम अशख़ास और जगहों के नाम को कहते हैं। मसलन मुहम्मदुन, लाहौरु, मक्कतु। मुहम्मदुन शख्स का नाम और लाहौरु या मक्कतु ये जगह का नाम है। तो अशख़ास और जगहों के नाम को इसम आलम कहते हैं। दूसरी किस्म इसम मारिफा की इसम ज़मीर है। इसम ज़मीर वो इसम होता है जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। मसलन मैं कहता हूँ खालिद बहुत अच्छा लड़का है, खालिद सुबह सवेरे उठता है, खालिद वक़्त पर स्कूल जाता है, खालिद साफ़ सुथरा रहता है। फिर मैं कहता हूँ खालिद बहुत अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, वो वक़्त पर स्कूल जाता है, वो साफ़ सुथरा रहता है। जब मैंने वो कहा तो ये किसकी जगह कहा? ये खालिद की जगह कहा। तो गोया वो इस्म जो नाम की जगह इस्तेमाल हो उसे इस्म ज़मीर कहते हैं। जैसे हुआ वो, हिया वो मुअन्नस, अंता तू मुज़क्कर, आना मैं, ये सब ज़मायर हैं और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह अगले असबाक में हम पढ़ेंगे। तीसरी किस्म इसम मारिफा की इसम इशारा है। इसम इशारा वो इसम होता है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इशारा कभी करीब किया जाता है तो उसे इशारा करीब, और कभी दूर किया जाता है तो उसे इशारा बईद कहा जाता है। इशारा करीब के लिए जो अल्फाज अरबी ज़ुबान में राइज हैं उनमें कुछ मुज़क्कर के कुछ मुअन्नस के अलग अलग अल्फाज हैं। मसलन हाज़ा ये एक मुज़क्कर, हाज़ानी ये 2 मुज़क्कर, हाउलाई ये सब मुज़क्कर, हाज़िही ये एक मुअन्नस, हातानी ये 2 मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। तो गोया हाउलाई मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए जमा में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता हाज़ा हाज़ानी मुज़क्कर के लिए और हाज़िही हातानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक टोटका अगर आप याद रखें तो मुज़क्कर मुअन्नस में फ़र्क करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें मुज़क्कर में ज़ाल होती है तो हाज़ा और हाज़ानी में भी ज़ाल है, तो यूँ याद रखिए कि ये दोनों मुज़क्कर के लिए हैं। मुअन्नस में अमूमन ता होती है तो हाज़िही में ज़ाल मौजूद है, लेकिन आखिर में ये जो हा है ये गोल ता की तरह है, लिहाजा आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये मुअन्नस के लिए है। और हातानी में ता मौजूद है। तो इस तरह आप याद रखिए कि जैसे मुज़क्कर में ज़ाल होती है तो हाज़ा हाज़ानी में ज़ाल है तो ये दोनों मुज़क्कर के लिए हैं, हाज़िही हातानी ये दोनों मुअन्नस के लिए हैं। अलबत्ता हाउलाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इशारा बईद में ज़ालिका वो एक मुज़क्कर, ज़ानी का वो 2 मुज़क्कर, उलाई का वो सब मुज़क्कर, तिल का वो एक मुअन्नस,
तानी का वो दो मुअन्नस, उलाई का वो सब मुअन्नस। तो यही टोटका जो अभी मैंने आपको बताया है वो आप इधर भी अगर गौर से देखें फिट आता है कि मुज़क्कर में ज़ाल होती है, ज़ालिका ज़ानिका में ज़ाल है, तो आप इससे पहचान लें कि ये मुज़क्कर के लिए हैं, और तिलका तानिका में ता है तो ये दोनों मुअन्नस के लिए हैं। उलाइका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जगह इस्तेमाल होता है। इशारा बाईद में एक और बात बड़ी अहम जो कुरान फहमी के लिए अशद ज़रूरत है उसका भी हमें इल्म होना चाहिए। हमने देखा है कि ज़ालिका कभी ज़ालिकुमा हो जाता है, तिल का कभी तिलकुमा हो जाता है, ज़ालिका कभी ज़ालिकुम हो जाता है, तिल का कभी तिलकुम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये जिनके लिए इशारा किया जा रहा हो ये उनके लिहाज से होता है। अलबत्ता ये बात इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम मुरक्कब इशारी एक सबक आएगा तो उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी इसकी तफसीलात वहाँ बयान की जाएंगी। इसम मौसूल, इसम मौसूल वो इसम होता है जो दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम देता है। इसके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के अलग अलग अल्फाज हैं। अल्लज़ी वो एक मुज़क्कर जो, अल्लज़ानी वो दो मुज़क्कर जो, अल्लज़ीना वो सब मुज़क्कर जो, अल्लती वो एक मुअन्नस जो, अल्लतानी वो दो मुअन्नस जो, अल्लाती वो सब मुअन्नस जो। कुरान मजीद में अल्लाती के अलावा जमा मुअन्नस के लिए अल्लाई भी इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इसे भी हमें याद रखना होगा कि अल्लाती और अल्लाई दोनों जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वही टोटका इधर भी आपको फ़ायदा देगा कि मुज़क्कर में ज़ाल होती है, अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना में ज़ाल है, तो आप याद रखिए कि ये तीनों मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुअन्नस में ता होती है, अल्लती अल्लतानी अल्लाती में ता है, तो यूँ आप याद रखिए कि ये तीनों मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसम मौसूल का अमूमन तर्जमा जो, जिस, जिन्हें, जिन्होंने वगैरह किया जाता है। पांचवी किस्म इसम मारिफा की मुअर्रफ बिल लाम है। ये ऐसा इसम होता है कि जो नकीरा के शुरू में अल लगाकर जिसे मारिफा बनाया गया हो। नकीरा के शुरू में अल लगाकर इसम को मारिफा बनाया जा सकता है, लेकिन ये याद रहे कि जब अल आता है तो तनवीन चली जाती है, क्योंकि तनवीन नकीरा की अलामत है और अल इसम को ख़ास कर देता है, ये मारिफा बना देता है। तो एक इसम कैसे हो सकता है कि वो मारिफा भी हो और नकीरा भी हो? लिहाजा जब अल जो कि मारिफा की अलामत है आता है तो नकीरा की अलामत तनवीन चली जाती है, यानी एक साथ दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते। रसूलन अर रसूलु, यानी रसूल, रसूलन कोई रसूल, लेकिन जब अर रसूलु कहा जाएगा तो अब कहने वाले के जहन में एक ख़ास रसूल है जो मुराद है। तो ये ख़ास होना कहाँ से मालूम हुआ? अल की मौजूदगी से इल्म में आया, यानी अल की मौजूदगी से पता चला कि ये इस्म अब ख़ास हो गया है। तो ये मारिफा की 5 अक़साम हैं। अगर आप किसी भी इस्म के बारे में ये मालूम करना चाहें कि वो नकीरा है या मारिफा, तो उसका तरीक़ा ये है कि उस इस्म को आप
मारिफा की इन 5 किस्मों पर पेश कर दें। अगर इन 5 किस्मों में से कोई एक है तो वो मारिफा, और अगर इन 5 किस्मों में से कोई नहीं तो फिर वो नकीरा होता है। और एक बात याद रखें कि मारिफा की पहली 4 अक़साम के साथ अल लगाना क़तअन दुरुस्त नहीं, इसलिए कि अल लगाया जाता है नकीरा से मारिफा बनाने के लिए। वो पहले ही मारिफा है तो अल लगाने की क्या ज़रूरत है, और अगर कोई अल लगाए तो वो इंतहाई गलती होगी। एक बात याद रखिए कि जमा मुकस्सर गैर आकिल अस्मा के लिए इस्म इशारा और इस्म मौसूल दोनों वाहिद मुअन्नस आते हैं। दोबारा समाअत फरमा लें कि जमा मुकस्सर गैर आकिल अस्मा के लिए इस्म इशारा और इस्म मौसूल ये दोनों वाहिद मुअन्नस आते हैं। मसलन हाज़िही अम्वालुकुमुल्लती, यहाँ अल्लती वाहिद मुअन्नस आया है जो कि इस्म मौसूल है। अम्वालुकुम क्योंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, इस वजह से अल्लती वाहिद मुअन्नस आया है। अब हम इन क़वाइद से मुताल्लिक़ मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, मारिफा और नकिरा को अलग अलग करें और उनका तर्जमा भी करें। बिन्तुन लड़की, ये नकिरा है क्योंकि मारिफा की 5 किस्मों में से किसी किस्म में से भी नहीं है। अस्सालिहूना ये मारिफा है क्योंकि इसके शुरू में अल आया है। अर्रिजालु ये भी मारिफा है क्योंकि इसके शुरू में भी अल आया है। निसाउन ये नकिरा है क्योंकि मारिफा की 5 किस्मों में से ये किसी में से नहीं है। हाज़िही ये मारिफा है क्योंकि ये इस्म इशारा है और इस्म इशारा मारिफा की एक किस्म है। आना मैं ये मारिफा है क्योंकि ये ज़मीर है और ज़मीर मारिफा की अक़साम में से एक किस्म है। ज़ालिका ये भी ज़मीर है और ये भी मारिफा है क्योंकि ज़मीर मारिफा की एक किस्म है। इब्राहीमु ये मारिफा है क्योंकि ये इस्म आलम है। फासिकातुन ये इस्म नकिरा है क्योंकि इस्म मारिफा की किसी किस्म से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अस्साअतानी ये भी मारिफा है क्योंकि इसके शुरू में अल आया है। जमीलतुन खूबसूरत ये नकिरा है क्योंकि इस्म मारिफा की 5 अक़साम में से किसी किस्म के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 2, इस्म मारिफा को इस्म नकिरा बनाएं। अल औलादु ये इस्म मारिफा है, अगर इसे नकिरा बनाना हो तो इसके शुरू से अल हटा देंगे, लेकिन जब अल हटाएंगे तो फ़ौरन तनवीन वापस आ जाएगी, तो औलादुन ये इस्म नकिरा बन जाएगा। अल किताबानी जब इसे नकिरा बनाना हो तो इसके शुरू से अल हटाएंगे तो ये नकिरा बन जाएगा। अलबत्ता यहाँ तनवीन आ नहीं सकती, सिर्फ एक ज़ेर निशानी है तस्निया की, अलिफ नून, नून के नीचे ज़ेर, यहाँ तनवीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसलिए सिर्फ अल को हटाने से ही ये नकिरा बन जाएगा। अस्सालिहातु यहाँ से अल हटाकर सालिहातुन तनवीन लाएंगे तो ये नकिरा बन जाएगा। अल आयातु आयातुन यहाँ पर अल हटाकर तनवीन लाएंगे तो ये नकिरा हो जाएगा। अल मोमिनूना यहाँ सिर्फ अल हटाया जाएगा क्योंकि मोमिनूना के आखिर में वाव नून है, यहाँ तनवीन नहीं आ सकती, इसलिए सिर्फ अल हटाने से मोमिनूना ये नकिरा बन जाएगा। सवाल नंबर 3, इस्म नकिरा को इस्म मारिफा बनाएं।
रिजालुन, यहाँ आपने पढ़ा था कि नकीरा को मारिफा बनाने के लिए शुरू में अल लगाते हैं, जो ही अल आता है तो तनवीन को हटा दिया जाता है, तो अर रिजालु ये मारिफा बन गया। इमराअतानी, इसी तरह ये अल इमराअतानी मारिफा हो गया, अल लगाने से मारिफा बन गया। सादिकातुन, तो अस्सादिकातु बनाने से, शुरू में अल लगाने से मारिफा हो गया। मुशरिकूना, अल मुशरिकूना यानी शुरू में अल लगाने से मारिफा बन गया। आयतुन, अल आयतु, तो यहाँ शुरू में अल लगाकर आखिर से तनवीन हटाने से मारिफा बन गया, अल आयतु आयत। सवाल नंबर 4, तस्हीह करें अल हादा, अल मुहम्मदु, ये दोनों गलत हैं क्योंकि शुरू में अल नहीं आना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया था कि मारिफा की पहली 4 अक़साम के शुरू में अल लगाना दुरुस्त नहीं, तो हाजा उन 4 अक़साम में से एक है और साथ अल लगा हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। तो दुरुस्त कैसे होगा? अल हटा देंगे, हाजा अब दुरुस्त हो गया। अल मुहम्मदु, तो मुहम्मदुन अल हटाएंगे तो तनवीन आ जाएगी, तो अल मुहम्मदु मुहम्मदुन जब हो जाएगा तो ये दुरुस्त हो जाएगा। याद रखें, जब भी कोई इस्म हो और वो किसी शख्स का नाम हो तो उसके शुरू में अल नहीं आ सकता, इसलिए कि वो इस्म अलम होता है। जब किसी शख्स का नाम होगा तो यकीनन वो इस्म अलम होता है। जब इस्म अलम होता है तो इस्म अलम के शुरू में कभी अल नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मुहम्मदुन कहकर इसको दुरुस्त करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।